नमस्कार, आप सभी का इस शुक्रवार वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। आज नेशनल हेल्थ एंड नेचुरोपैथी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच एक विशिष्ट वक्ता मौजूद है, जो है डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, जो नेचुरोपैथ एंड प्रो चांसलर द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी दीमा प्रो है। आपको बहुत स्वागत है सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। हमारे साथ इस वेबिनार में हमारे राष्ट्रीय योग संस्था निदेशक महोदय डॉक्टर ईश्वर वी बसवा रेड्डी सर भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद वंदना जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पंडित। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ के संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब भी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परंपरा अब हम प्रार्थना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए मोहम्मद तैयब आलम जी को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Dr. Vandana. Before coming to the topic, I would like to say a few words about MDNY's Friday webinar. The journey of Friday webinar has started since 2nd October 2020 as a part of Ayush for Immunity campaign under the dynamic leadership of Dr. Iswar V. Vasavareddy, Director Murarji Desai Institute of Yoga. Since then, it has become a regular feature and is being conducted on every Friday. The beauty of Friday webinar is that it has the presence of renowned and eminent experts of yoga, naturopathy, modern medicine, allied science, diet and nutrition, media, and from many other disciplines. Welcome Dr. S.N. Pandesa on MDNY's Friday webinar. Dr. S.N. Pandesa is a renowned expert of naturopathy in the country. He is the first technical officer of naturopathy to be appointed as Assistant Research Officer in Central Council for Research in Yoga and Naturopathy and served from 1980 to 2008. He has also served as principal of famous Gandhi Naturopathy College, Hyderabad, from 1982 to 1985. He served as a professor and head School of Oriental Medicine, the Global Open University, Nagaland, from 2008 to 2012. He became the Vice Chancellor of Indira Gandhi Technological and Medical Science University, Zero, Arunachal Pradesh in 2012 and served till 2017. He is presently Pro-Vice Chancellor of the Global Open University, Nagaland. He has also to his credit a number of publications in the form of articles, books, encyclopedia in Hindi and English. He is the recipient of many national and international awards. With these few words, I would like to invite Dr. I.V. Vasavareddy, Sir, Director Murarji of Yoga, to say a few words about today's topic. Sir. ओम शांति शांति शांति। आज के प्रमुख वक्ता और देश के जाने माने प्राकृतिक चिकित्सक, विशेषज्ञ और
एकेडमिशियन भी कहूँगा मैं। हमारा सहयोग भी रहे मंत्रालय में, काउंसिल में, डॉक्टर एस.एन. पांडे साहब, और संस्थान में मेरे सहयोगी श्री तायब आलम जी, डॉक्टर वंदना जी, मेरे सारे अध्यापकगण, बोधकगण, विद्यार्थी मित्रों, और इस वेबिनार में शामिल हो रहे देश के और विदेशों से ही योग जो प्रेमियों हैं ज्वाइन हो रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। At the outset, I welcome all the participants from all over the world, because this 5-day webinar is being watched and is a very popular webinar from our institute. Is being watched by during and afterwards also, because it will be on our YouTube from various sections of the society to enrich their knowledge and skills about health and many systems of medicine, particularly Ayush in general and yoga in particular. Today I am very happy that very learned and very eminent naturopath I considered. I have seen hundreds of naturopaths in my life from the childhood. Yesterday only we have celebrated the 4th National Naturopathy Day, Prakritik Chikitsa Divas, in a very big manner on various platforms. So पांडे साहब, आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैं कल भी आपको याद किया, गांधी स्मृति में हम कार्यक्रम कर रहे थे और आपको याद किया। हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा की बात आती है कि मैं आपको सदा याद करता हूं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है फील्ड के लिए पिछले 5-6 दशक से ज़्यादा, आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के लिए, हमेशा सिस्टम भी याद करेंगे, और जो सही व्यक्ति है वो लोग आपका कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के लिए, जो सरकार में रहते हुए है 80 के दशक में, 90 के दशक में, जो आप लोगों ने स्कीम्स बनाया, पॉलिसी बनाई, उससे जो नेचुरोपैथी सेंटर को बढ़ोतरी मिली उनको, क्योंकि वो जनमन का चिकित्सा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बहुत सारे कठिनाई आते हैं, सरकार के बिना सहायता से वो लोग चला रहे हैं। थोड़ा सा उनको सरकार का नाम भी मिला, वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। मैंने देखा है 90 के दशक में, मैं बहुत संस्थानों में जाकर देखा है, वो लोगों ने अपना जिंदगी पूरा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, अपना पूरा जो प्रॉपर्टीज है सारे इसके लिए समर्पित करके जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों को मैंने बहुत जगहों में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में देखा हूँ मैं। इसका सारे उन लोगों को सहायता करने का श्रेय आपको जाता है, मैं ऐसे मानता हूँ। इसलिए, और उसके साथ साथ इस चिकित्सा पद्धति का जो सारे जो इंडियनाइज्ड है आजकल, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी जर्मनी में और यूरोपियन कंट्रीज में एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल सिस्टम, और उनका थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड है सारे, लेकिन हमारा प्राकृतिक चिकित्सा देसी पद्धति है, घर घर में उनका प्रयोग करते हैं, उनका कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। और हम कभी कभी कंफ्यूजन कर लेते हैं आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग। कहीं ना कहीं हम आपको भी मानना पड़ेगा, ये तीनों पद्धतियाँ हमारा देसी पद्धति है कि वो हम कहीं नहीं हर बार मिलते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा उस पर हमें ध्यान नहीं देना है कि जनमन को क्या चाहिए,
सो वो हमें सोचना है कि प्राकृतिक चिकित्सा में आप सभी लोग जानते हैं, मैं 3 चीज़ें बताता हूँ आज। सबसे पहले आजकल दुनिया भर में बात कर रहे हैं हम लोग लाइफ़स्टाइल के बारे में, लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आज डब्ल्यूएचओ ने उनको एनसीडी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ का दर्जा देकर बहुत बड़ी मात्रा में बिलियंस के रूप में खर्चा कर रहे हैं दवाई लाने के लिए। लेकिन उनका निर्मूलन के लिए फर्स्ट ये है कि प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन के लिए चाहिए हमारा लाइफ़स्टाइल, जो प्राकृतिक चिकित्सा में मैं पंडित साहब, मैं सबसे पहला जो मेरा सर्टिफ़िकेट हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा में 1974 में, गांधी स्मृति स्मारक, एक दक्षिण भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फेडरेशन एसोसिएशन था। जी, में 1 महीने का कोर्स हमारा हाई स्कूल में आकर किए थे 1974। उसके बाद 75 में मैंने 1 महीने का योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया हाई स्कूल में ही। सो उन दिनों को यादें आज ही याद है मुझे। वहाँ उन लोगों ने इतना प्रेम से हमें मिट्टी चिकित्सा, ये पंच महाभूत के बारे में, आहार के बारे में बहुत अच्छी ढंग से सिखाया था। हाई स्कूल में थे हम लोग, फिर भी मैं एक-एक पल को मैं आज भी याद करता हूँ। सो इसलिए क्योंकि ये बताया कि 1974 ऑलमोस्ट 47 48 इयर्स होने लगा है। उन ज़माने में भी हाई स्कूल में, कॉलेजेस में, स्कूलों में आकर हम पहले जाते थे कि हाफ पैंट पहनकर योग प्रचार करने में स्कूलों में जाते थे। जब मैं चालू किया था मेरा करियर, हमारा टीचर्स के साथ जाकर हमने कुछ डिफ़िकल्ट आसन, नौली वगैरह, वस्त्र धोती वगैरह दिखाकर उनको प्रोत्साहित करते थे। जैसे ही प्राकृतिक चिकित्सक भी हर स्कूलों में जाकर मैंने अपने प्रदेश में देखा है बाल्य में। सो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने जो उसको अपनाया, उसको घर-घर तक पहुँचाने का जो उनका मकसद था, सो इसलिए था कि वो हमारा देशीय पद्धति है, उससे हमें रोग मुक्त भारत की आज बात कर रहे हैं हम लोग। सो हम सफल बनने के लिए उसके अलावा कोई भी जितने भी हॉस्पिटल आप बनाएँ, इमरजेंसी के लिए अमीर लोगों के लिए है, लेकिन जनमन के लिए कोई पद्धति है हमारा प्राकृतिक चिकित्सक, योग और आयुर्वेद। इन पद्धतियों को हमें बढ़ावा देना है। भारत सरकार पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे कदम उठाया है इनको पद्धतियों को। और आजकल हम शहरों में रहते हुए नेचुरोपैथी अमीर लोगों का बन गया। हम वहाँ जाते हैं कि हाइड्रोथेरेपी, बड़े-बड़े फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं कि मैं भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाता हूँ। 5-6 हज़ार एक दिन में नहीं दिया तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिलती। फैशन हो गया। हाँ, फैशन हो गया है। वो उससे कल भी हम इसी पर ज़्यादा बात किए, हमारे मंत्री महोदय सारे लोग। हम चाहते हैं कि वो जनमन का चिकित्सा बने, चिकित्सा पद्धति बने, है ऑलरेडी, वो सरलता से है ऑलरेडी। सो जो हमने बड़े-बड़े डिग्री 10-15 लाख रुपए करके डिग्री करते हैं, उसको वसूल करने के लिए, जैसे मॉडर्न मेडिसिन हो गया, योग भी ऐसे ही होने जा रहा है। सो हमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा को हमारा देशी पद्धति है और हमारा इस पद्धतियों को रक्षा करने में हमें जितना भी प्रयास करें, वेबिनार करें, गाँव तक जाए, कैंप लगाए, जन को, मन को प्रभावित करें उनको अनुसरण करने के लिए। इस दिशा में आज के आपका जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्राइडे जैसे ताइब जी ने बताया, बहुत 1 साल से ज़्यादा ये बहुत यशस्वी रहा हमारा वेबिनार सीरीज़। हमने इसका 2-4 पेजेज़ का एब्स्ट्रैक्ट बनाकर वो भी हम पब्लिश करने जा रहे हैं और यूट्यूब में एडिट करके हमने उनको क्लिप्स लगाते हैं कि लोग कभी भी आकर ये जाने। इसलिए आज का जो आपका लेक्चर है, हेल्थ और प्राकृतिक चिकित्सा, सो जैसे हमने आज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर रोशनी डालें और हमें भी अ, सीखने के लिए कुछ, मैं भी हमेशा सुनता हूँ आपका आपका लेखन सुना हूँ, पढ़ा हूँ, लिटरेचर पढ़ा हूँ। सो आज भी मैं बहुत उत्सुकता से आपका वक्तव्य सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ और एक बार बहुत गौरवपूर्वक, प्रेम पूर्वक आपको इस लेक्चर सीरीज में, वेबिनार में आपको स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना आज का टॉपिक पर अपना वाक्य लेक्चर्स दें। प्रोफेसर एस.एन. पांडे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हो रहा है, विज्ञान का चमत्कार। 2008 में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैं देखता हूँ काफी आप लोगों ने प्रगति किया। योग और नेचुरोपैथी का आज एक विशिष्ट स्थान हिंदुस्तान में कम से कम है, और उसके लिए काफी क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है। 2008 के बाद काफी काम हुआ। एक खास चीज जो आपने कहा वो मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि हिंदुस्तान में जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो विदेशी प्राकृतिक चिकित्सा से भिन्न है। Naturopathy, as we are practicing today in India, is quite different from the one that foreigners are practicing. The reason is कि हमारा जो डिफिनीशन है, नेचर क्योर का डिफिनीशन जो हिंदुस्तान में है वो पंच महाभूत पर आधारित है। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, हवा, पानी, मिट्टी, अग्नि, आकाश, और इन्हीं से इलाज का नाम प्राकृतिक चिकित्सा है। ये जो पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट है ये विदेशों में नहीं है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि ये जो नेचुरोपैथी है जो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रही है, जैसे अभी डॉक्टर वासवा रेड्डी साहब बता रहे थे कि ये डिफरेंट है। हिंदुस्तान में नेचुरोपैथी भारतीय ढंग से और विदेशों में जो प्रैक्टिस है वो उसमें ये पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक मूल चीज है। There are two classical definitions of naturopathy. One is Indian and the other is of Dr. Henry Lindlar. Indian definition says that our body is made up of 5 grand elements: हवा, air, पानी, water, मिट्टी, earth, agni, fire, आकाश, space. And treatment by these 5 elements is called naturopathy. गांधी जी ने इसमें एक कंट्रीब्यूशन ये है उनका कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, दिस डेफिनेशन इज डिफिशिएंट, क्योंकि ये पंच महाभूत किसी मरे आदमी पर काम नहीं करता है। जो जिंदा आदमी है उसी पर हवा, पानी, मिट्टी सब काम करता है। तो जिंदा आदमी और मरे आदमी में फर्क क्या है कि जो मर गया है उसमें सोल नहीं है, और जो जिंदा है उसमें सोल है। तो इस सोल का, आत्मा का हीलिंग भी होना चाहिए। और वो हीलिंग कैसे होगा? वो हीलिंग होगा राम नाम से, वो हीलिंग होगा प्रार्थना से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये 5 चीजों से इलाज नहीं, 6 चीजों से इलाज का नाम प्राकृतिक चिकित्सा होना चाहिए। और आपको याद हो, आप उस पुराने जमाने की बात आज याद दिला रहे कि पुराने जमाने में जितने भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स होते थे उनमें अनिवार्य रूप से प्रार्थना जरूर होती थी। Yes. Prayer was one of the treatment modalities in naturopathy in almost all the hospitals. Yes. तो ये चीजें विदेश में नहीं है। विदेश में जो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है वो, उसके लिए जो पॉपुलर डिफिनीशन है हेनरी लिंडलार का। डॉक्टर हेनरी लिंडलार कहते हैं कि नेचुरोपैथी इज ए सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग on physical, mental, moral and spiritual planes of living in accordance with constructive principles in nature. तो ये जो डिफिनीशन है इसमें ये कहते हैं कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल और स्पिरिचुअल प्लेन्स पर जो एक साथ इलाज का नाम है वो नेचुरोपैथी है। और भी ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इस डिफिनीशन में ये बताते हैं कि नेचुरोपैथी का दायरा कितना है। ये दायरा है शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक। और जो इंडियन डिफिनीशन है उसमें
बताते हैं कि किन चीज़ों से इलाज होना है। वो है 5 मोडलिटीज, 5 ग्रैंड एलिमेंट्स प्लस प्रेयर। तो ये जो क्लासिकल डिफिनीशंस हैं नेचुरोपैथी के, ये विदेशों में और हिंदुस्तान में जो नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस है इसको अलग करते हैं। और विदेशों में जो भी नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस है वो डिपेंड है मॉर्बिड मैटर थ्योरी पर। शरीर में मॉर्बिड मैटर इकट्ठा हो गया तो रोग हो जाएगा। accumulation of morbid matter is the root cause of disease and treatment lies in eliminating those morbid matters। और ये कॉन्सेप्ट जो मॉर्बिड मैटर का है ये आयुर्वेद में है। मल चिकित्सा, शरीर में मल का संचय हो जाएगा तो आप बीमार हो जाएंगे, मल को साफ करो। योग में भी यही है। योग में जो शौच का है, यम नियम, नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जो शौच में हम सटकर्म कराते हैं वो क्या है? वो शरीर की आंतरिक और बाह्य सफाई का नाम शौच है। तो हिंदुस्तान का जो नेचुरोपैथी है वो इंडियन नेचुरोपैथी है। इसमें आयुर्वेद के भी कॉन्सेप्ट हैं। योग को अगर नेचुरोपैथी से निकाल दो तो कुछ बहुत चीज कम हो जाती है। योग अनिवार्य रूप से इसके कॉन्सेप्ट इसमें है। और विदेशी कॉन्सेप्ट भी हमने शामिल कर लिया कि हम लोगों का इलाज उसके शरीर का तो करते ही हैं, उसके मन का भी करते हैं, उसके आध्यात्मिक पहलू पर भी और नैतिक पहलू पर भी हम इलाज करते हैं। तो ये चारों का एक साथ इलाज, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट का जो डिफिनीशन है वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन not only from head to toe, treatment of a patient at physical, mental, moral and spiritual planes of living. This is known as holistic approach. Anyway, naturopathy का ये definition, today's topic is national health and naturopathy. तो नेशनल हेल्थ पर थोड़ी बात कर लिया जाए। अब हिंदुस्तान में नेशनल हेल्थ स्टेटस क्या है? What is the national health status in our country? Is it satisfactory? अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई नेशनल हेल्थ स्टेटस हिंदुस्तान का कैसा है, ठीक ठाक है, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि कई रोग बढ़ रहे हैं। हृदय रोग हिंदुस्तान कैपिटल है, डायबिटीज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और बढ़ता जा रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और ये बढ़ता जा रहा है, लीवर डिजीजेस, हमारे यहाँ लीवर के लिए अलग से हॉस्पिटल है, लीवर एंड बिलियरी डिजीजेस का, और वहाँ आप कभी जाइए तो देखिए पेशेंट्स का क्या हाल है। तो ये जितने भी रोग हैं इनकी जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ है, बढ़ने की तरफ है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ स्टेटस को देखें आप, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, सिजोफ्रेनिया के इंसिडेंट्स अब बहुत देखने में आते हैं। तो मेंटल हेल्थ स्टेटस इज अलार्मिंग और आने वाले दिनों में शारीरिक रोगों से ज़्यादा मानसिक रोग ज़्यादा होने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए टीबी से लेकर के और इन्फेक्शस डिजीजेस या फिजिकल डिजीजेस या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो अभी बात हो रही थी, ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नेशनल हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा है। अब दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें कि भाई हिंदुस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडिक्वेट है कि नहीं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम नहीं है। आपको याद हो डॉक्टर साहब, आप भी मेंबर थे उसमें, NHSRC ने 2008 में एक सर्वे करवाया था टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ आयुष, एंड आई वाज हेड ऑफ द सर्वे। तो 24 स्टेट्स में सर्वे हुआ था, उसका रिपोर्ट भी पब्लिश हुआ था। उसमें शायद आपका भी फॉरवर्ड वगैरह है उस कमेटी में या GS साहब का है।
काफ़ी 400 पेज की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी NHSRC में। तो उस Yes. 24 स्टेट्स के सर्वे के दौरान मैंने देखा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइजेशन नहीं होता। और ये एक तरह का क्राइम है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आइडल पड़ा हुआ है, उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये एक तरह का क्राइम है। तो अगर जो देश में इस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर ठीक ठीक यूटिलाइज किया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। अब तीसरा प्रश्न होता है कि देश में क्या डॉक्टरों की कमी है? तो मैं देखता हूं कि डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। असल में होता क्या है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो केवल एक सिस्टम का लेते हैं, एलोपैथी में इतने डॉक्टर हैं, और सारी हेल्थ पॉलिसी उस आधार पर तय करने लगते हैं। फिर लाखों लोग हैं आयुर्वेद के, यूनानी के, सिद्धा के, योगा के, नेचुरोपैथी के। अब ये लाखों की जो संख्या है इसको भी एड अप कर करके अगर आप सोचें तो देश में मैन पावर की भी कमी नहीं है। और ये आज हेल्थ यूनिवर्सिटीज से लोग डिग्री लेकर के आते हैं, 5.5 साल पढ़ते हैं। योग भी जो करा रहा पहले जैसा नहीं है कि भाई 1 महीने की ट्रेनिंग करके करा रहा, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अभी मैं बात कर रहा था कि वहाँ BSc योगा, उसमें लैंग्वेजेस का भी आपने प्रोफेसर से रखे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो अब इतना सब चीज़ें सिस्टमटाइज हैं, तो मैन पावर की भी कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है। कमी क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये दोनों चीज़ें किया जाए तो कमी नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए? अब हम प्रिवेंशन में योग और नेचुरोपैथी का जो रोल हो सकता है उसको लोगों को ठीक ठीक रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर पूरे देश में योग और नेचुरोपैथी का सही सही प्रचार किया जाए लोगों में, तो ये बहुत सारे रोगों से लोगों को बचा करके रख सकती है। और जब रोगी कम होंगे तो मैन पावर जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो भी कम होगा, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में आपके नेतृत्व में चलाना बहुत जरूरी है कि देश में योग और नेचुरोपैथी हर गांव-गांव तक किसी तरह से पहुंचे। कुछ लोग अभी पुराने हैं, उनको भी आप यूटिलाइज करिए, उनके एक्सपीरियंस को लेने में कोई हर्जा नहीं है। एक्सपीरियंस इज सब्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अगर डिग्री नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो उसको हमें कुछ इस ढंग से भी सोचना पड़ेगा, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर इन मैन पावर को यूटिलाइज किया जाए तो हमारे ख्याल में नेशनल हेल्थ स्टेटस को बहुत बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी क्या हो रहा है कि अभी केवल और केवल हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि वैक्सीनेशन करना है। अभी कोविड-19 में वैक्सीन आ गया, तमाम डिजीजेस का बचपन से वैक्सीनेशन। हर चीज का केवल वैक्सीनेशन ही आंसर नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन का अपना रोल जरूर है, लेकिन केवल वैक्सीनेशन के आधार पर हम अपने हेल्थ को और प्रिवेंशन को नेग्लेक्ट करते रहें, ये ठीक नहीं है। वैक्सीन को लेकर के कई तरह के कंट्रोवर्सीज भी हैं। सारी दुनिया में 2 तरह के ग्रुप रहे हैं। एक ग्रुप वो था जो वैक्सीनेशन को सपोर्ट करता है, एक ग्रुप वो है जो वैक्सीनेशन को सपोर्ट नहीं करता। अभी मैं देख रहा था कई वीडियोस जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं। अब ये क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल वैक्सीनेशन को हमें डिजीज प्रिवेंशन का आधार नहीं मानना चाहिए। योग और नेचुरोपैथी की जो बेसिक मान्यता है वो ये है कि शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाओ, और शरीर में जब तक पर्याप्त जीवनी शक्ति है तब तक आपको कोई रोग पकड़ नहीं सकता। शरीर में जब तक स्वच्छता है आंतरिक, तब तक कोई बैक्टीरिया और वायरस वहां जाकर के पनप नहीं सकता, अपनी कॉलोनी नहीं बसा सकता है। तो जिसको आप इम्यूनिटी, कोविड के दौरान कुछ काम बहुत अच्छा हुआ है।
एक तो काम ये अच्छा हुआ है कि लोगों में ये अवेयरनेस आया है कि स्वच्छता बहुत जरूरी चीज है, हाइजीन। और दूसरा ये कि इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें कई चीजें क्या हो रही हैं कि केवल दवा के आधार पर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, जबकि दवा से इम्यूनिटी नहीं बढ़ सकती। दवा से शरीर में कोई डिफिशियंसी वगैरह हो, कोई विटामिन मिनरल्स की कमी हो, उसको तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक ठीक खाएंगे नहीं, ठीक ठीक सोएंगे नहीं, ठीक ठीक सोचेंगे नहीं, तो इन सब चीज़ों का क्या होगा? इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा। वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स अब्यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ठीक ठीक सोचना चाहिए। हम लोग गलत सोचते हैं, उसका असर बीपी और सुसाइड और ये सब तमाम चीजें दिखाई पड़ती हैं। इम्यूनिटी पर आहार का, निद्रा का, काम का, अध्यात्म का, नशा सेवन का और सीडेंटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज वगैरह का, इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और इम्यूनिटी इन्हीं से बढ़ती है। दवा से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कम से कम मैं नहीं मानता हूँ। और इसी को लाइफ स्टाइल करते हैं। लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन माने क्या? यू करेक्ट योर डाइट, यू करेक्ट योर स्लीप, यू करेक्ट योर sex abuse, you correct your alcoholism and drug abuse, you correct your sedentary habits. All these corrections are known as lifestyle intervention. तो इन चीजों को अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी देश का जो हेल्थ है उसका स्टेटस बदल जाएगा। और ये करना चाहिए स्कूल से। कल मैं फरीदाबाद में था, वहाँ पर ये नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा था। तो वहाँ एक अच्छा काम ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों को बुला रखा था। तो हमने कहा ये ठीक हुआ है। नेचुरोपैथी, योग, इन चीज़ों का ज्ञान अगर बचपन से होने लगे, बच्चों को अगर आप भुट्टी में पिला दें ये, तो ये 5-10 साल में इस देश का नक्शा बदल सकता है। तो स्कूलों में 1980 में मैं जब काउंसिल में आया था सर, आपको याद हो, तो उस जमाने में स्कूलों में योग टीचर का अपॉइंटमेंट हो रहा था। तो वो फाइल मैं डील किया करता था। मुझे याद है वी हैव अपॉइंटेड अबाउट 1100 टीचर्स, वो सेंट्रल स्कूल्स में और दिल्ली के जो स्कूल्स हैं। उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट प्रॉपर हुआ नहीं। इसको जरा 80s सा, में, हाँ 80s में हुआ है। जी हाँ, 1980-81 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एटमॉस्फेयर अच्छा है, स्कूलों में योग और नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट्स आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर बच्चों में ये कॉन्सेप्ट पहुंच गया तो देश का स्वास्थ्य अपने आप सुधर जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। और एक खास बात कि हम लोग केवल शारीरिक और मानसिक रोगों की चर्चा करते हैं, अल्कोहलिज्म का और ड्रग अब्यूज का चर्चा नहीं करते हैं। अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज को अभी तक लोग समझते थे कि ये क्रिमिनल लीगल मामला है। असल में इसको डिजीज ट्रीट करना चाहिए। ये जो अल्कोहलिक है या ड्रग एडिक्ट है, ही इज ए पेशेंट, उसको इलाज की जरूरत है। इसको पकड़ धकड़ जो कर रहे हैं वो ठीक है, पकड़ धकड़ होना चाहिए, लेकिन इसका प्रॉपर इलाज होना बहुत जरूरी है। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये हो जाता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट है ये पेशेंट है, ये क्रिमिनल नहीं बल्कि रोगी है, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। डॉक्टर किरण बेदी जी ने इस पर काफ़ी काम किया था और CCRYN से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको मिलता था। 6 महीना वो रखती थी और 6 महीना रख करके उसको योगा, नेचुरोपैथी और इस तरह के जितने भी विड्रॉवल सिम्टम्स होते थे अल्कोहलिज्म के या ड्रग्स के, उसको मैनेज करती थी ड्रगलेस तरीकों से।
और 6 महीने बाद उसको सोसाइटी में वापस भेजती थी और उसका बड़ा लाभ होता था। इस तरह के प्रयोग अब बंद हो गए हैं देश में। डॉक्टर किरण बेदी जी का सेंटर भी मैंने पता किया तो पता चला कि बंद है। इस तरह के प्रोजेक्ट CCRYN से, MDNAY से, NIN से अगर चलते रहें तो मेरे ख्याल में बहुत लाभ होगा और लोगों का कॉन्सेप्ट बदलेगा। तो 3 चीज़ों का, एक तो शारीरिक रोगों का इलाज, दूसरा मानसिक रोगों का इलाज, तीसरा ये ड्रग एडिक्ट्स जो हैं इनको रोगी मान करके इनका इलाज। इन सभी में योग का, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो संक्षेप में मैं ये बता रहा था कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आइडल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना पड़ा हो, अगर पड़ा है तो उसको यूटिलाइज किया जाए। दूसरा, योग और नेचुरोपैथी का गांव-गांव तक और स्कूल तक प्रचार ये बहुत जरूरी है। आखिर नेचुरोपैथी है क्या? नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर व्हाट? गांधी जी की वजह से नेचुरोपैथी हिंदुस्तान में पनपी। गांधी जी को नेचुरोपैथी कहाँ मिली? गांधी जी इंग्लैंड में जब पढ़ने गए थे तो स्टूडेंट थे, वेजिटेरियन थे, वो वेजिटेरियन सोसाइटी के खोज में पड़ गए, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के, और वो वेजिटेरियन सोसाइटी का मेंबर बने। वहाँ जा करके उनको नेचुरोपैथी का ज्ञान हुआ, वहाँ नेचुरोपैथी के बुक्स और 1-2 नेचुरोपैथी के लोग मिले और उसके बाद वो आस्ते आस्ते कन्वर्ट होते होते एडल्फ जूस्ट वगैरह की किताबें पढ़ने के बाद पूरी तरह से नेचुरोपैथ बन गए और उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला पूना के पास, उर्ली कांचन में। अभी 2 साल पहले मैं गया था वहाँ, बहुत अच्छा लगा। वो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है पुराने ज़माने का। वहाँ वो सबसे पहला नेचुरोपैथ गांधी जी स्वयं थे और उसके बाद वहाँ कैसे इलाज होगा ये सारा ठीक ठाक करने के बाद वो वहाँ से गए और आज तक चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म गांधी जी का अहिंसा के वजह से, तो अहिंसा और वेजिटेरियनिज्म दोनों जुड़े हुए हैं। तो पुराने जमाने में ये माना जाता था कि कोई नेचुरोपैथ है तो वेजिटेरियन है और वहाँ जाओगे तो आपको वो प्रोपोगेट करेगा कि नेचुरोपैथी का खाना खाओ, वेजिटेरियन फूड खाओ। नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर एंटी अल्कोहलिज्म, नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर एंटी ड्रग अब्यूज। ये बहुत शुरू के दिनों से है। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई नेचुरोपैथ है और वो शराब पीता होगा या कोई नेचुरोपैथ है वो ड्रग लेता होगा। और अगर कोई ले रहा नेचुरोपैथी सेंटर जाएगा तो उनको इन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जाएगा। नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक फूड। यूरिया का जब से प्रचार शुरू हुआ तब से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक खाना श्रेष्ठ होता है। अब यूरिया के कई रिसर्च ऐसे आते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं है ऑर्गेनिक फूड में और यूरिया के फूड में। खैर जो भी हो, हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि भाई ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करना चाहिए। अभी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का मामला खड़ा हो रहा है। अब इसका क्या हश्र होगा? मैं तो ये कहता हूँ कि पहले बड़े बड़े कंट्रीज में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को 10 साल 15 साल खिलाया जाए लोगों को और जब वहाँ सेफ मालूम पड़े तब हिंदुस्तान में इसको खिलाना चाहिए, क्योंकि अमीर देश हैं वो अपना मैनेज कर लेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ और यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो कैसे मैनेज होगा? तो इन चीज़ों का भी प्रचार हम लोग करते थे। अब ये जो मामला है मुख्य, एक प्रेयर को लेकर के भी है। अब कई लोग कहते हैं कि साहब प्रेयर जो है वो इलाज का तरीका नहीं है। तो असलियत ये है कि प्रेयर बहुत बड़ा इलाज का तरीका है, इसको इलाज में शामिल ही करना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नेचुरोपैथी
किन चीज़ों के लिए है, व्हाट फॉर नेचुरोपैथी, है ना। तो नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर वेजिटेरियनिज्म, एंटी अल्कोहलिज्म, एंटी ड्रग अब्यूज, ऑर्गेनिक फूड, है ना, एंटी फास्ट फूड। नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ, प्रेयर एज ए थेरेपी। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको बहुत ध्यान से हमें लोगों में प्रमोट करना पड़ेगा। और नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर प्रमोटिंग लाइफ एंड लिबर्टी फॉर ऑल। हम लोग पेड़ पौधों से लेकर के और जानवरों तक के रक्षा का कामना करते हैं। तो शांति पाठ होता है, उसमें आप देखें उस मंत्र में उस कॉन्सेप्ट को हम लोग मानते हैं। नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प। अगर आप बीमार हैं, दूसरे की वजह से नहीं, खुद के वजह से हैं, और खुद ही को ठीक करना पड़ेगा और खुद ठीक करो। नेचुरोपैथी स्टैंड फॉर कोऑपरेशन विद नेचर। अभी क्या है, हवा खराब है, मिट्टी खराब है, पानी खराब है, सूरज की रोशनी नहीं मिलती, छोटे छोटे कमरों में हम लोग रहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी भी चीज़ें हैं सब गड़बड़ हुई पड़ी हुई हैं। अब इनको कैसे ठीक किया जाए आज के ज़माने में, 21st सेंचुरी लिविंग, 130 करोड़ जनता, हर साल जो है एक नया देश बनाने भर का जनता और बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेचुरोपैथी आज के ज़माने में किस तरह से लागू किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर विचार करना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर नेचुरोपैथी का ठीक ठीक प्रचार होगा तो उससे जो हार्ट डिजीजेस हैं उनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और इनको इनकी बढ़ती हुई संख्या को कम किया जा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक पहली बार CCRYN का यूनिट खुला था। वो खुला था स्पेशलाइज्ड OPD योगा एंड नेचुरोपैथी फॉर कार्डियक पेशेंट्स। और मैं जब सर्विस में था तो 4 साल मेरी पोस्टिंग वहाँ भी थी, तो मैं 4 साल वो काम देखता था। मैंने देखा कि उससे लोगों को बहुत लाभ होता है। और पहली बार वहीं पर हम लोगों ने लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन सेंटर खोला। अब मुझे इस वक्त पता नहीं है कि वो कैसा चल रहा है, लेकिन वो एक एग्जाम्पल है कि हार्ट डिजीज़ को नेचुरोपैथी, योग, इन चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ मेलिटस, इसको योग से, तमाम रिसर्च पेपर्स MD/NIY में हैं, मैनेज किया जा सकता है। योगा और नेचुरोपैथी को अलग करके चलने में थोड़ा घाटा है, इन दोनों को साथ साथ चलने में ही फायदा है। ये कम से कम इतना इंटीग्रेशन तो जरूर होना चाहिए, और योगा एंड नेचुरोपैथी शुड गो टुगेदर, तो रोगी को ज़्यादा फायदा होगा। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, CAD केसेस के मैनेजमेंट में बिना योगा के काम नहीं चलेगा। अर्थराइटिस बढ़ रहा है, अर्थराइटिस के मैनेजमेंट में योग नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उसमें नेचुरोपैथी अलोन नहीं, नेचुरोपैथी प्लस योगा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो जितने भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, प्राणायाम बहुत अच्छा उसका एक रोल है। गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत अच्छा रोल है। तो इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। तो एक प्रचार ये होना चाहिए कि ये जो मेजर डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस, लीवर के डिजीजेस, इन सारे को नेचुरोपैथी और योग से मैनेज किया जा सकता है। ये पब्लिक को पता होना बहुत जरूरी है। अभी पब्लिक को पता नहीं है और लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं मैनेज होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बिना दवा के कुछ होगा कि नहीं होगा। मैंने तो अपने जीवन में ये देखा कि कैंसर तक ठीक होते हैं। अब इसको कहने में लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है। तमाम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकते हैं।
साइकियाट्री में CCRYN का यूनिट था RML हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग देखते थे कि तमाम साइकियाट्रिक कंडीशंस को, साइकोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक कंडीशंस को, इन चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है। इस पर रिसर्च भी हुआ है वहाँ पर पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के सहयोग से। और वहाँ ये देखा गया कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, स्किज़ोफ्रेनिया में योगा का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब भी मैं योगा नेचुरोपैथी की बात करता हूँ तो उसमें अनिवार्य रूप से योगा भी शामिल होता है, और जब मैं योगा की बात करता हूँ तो अनिवार्य रूप से उसमें नेचुरोपैथी भी शामिल हो जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना पड़ेगा। दूसरे, हमारे कल्चर में, हमारे कस्टम में बहुत चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे हमारे कस्टम में एक है कि सूरज को जल चढ़ाते हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया था। हम लोगों को सूरज का धूप मिले हुए महीनों महीनों बीत जाते हैं, अपने कमरे में पड़े रहते हैं, गर्मी में AC लगी रहती है, जाड़ों में हीटर लगा रहता है, सूरज का कभी दर्शन ही नहीं हो पाता। कम से कम उस पानी चढ़ाने के चक्कर में सूरज का दर्शन हो जाता है। और क्रोमोथेरेपी एक अलग विद्या है, जो रोशनी, जो कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स, उनसे इलाज। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारे कई चीज़ें हमारे कस्टम में, हमारे कल्चर में एम्बेडेड हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उसको बना रखा है, उनको ऑब्जर्व करने में कोई हर्जा नहीं है। अभी कैंसर को लेकर के मैंने देखा कि बहुत सारी बातें हो रही थी। डॉक्टर विगमोर, एक लेडी यहाँ आई थी 70s में, उन्होंने व्हीट ग्रास का बड़ा प्रचार किया। और व्हीट ग्रास थेरेपी अनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है, कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, और तमाम रोगों में। स्प्राउट का बड़ा, अब स्प्राउट नेचुरोपैथी के साथ बड़ा पॉपुलर हुआ। हम लोग I started my practice in 1967. I am the oldest naturopath of Kolkata. I started my practice in Kolkata. तो उस जमाने में ये स्प्राउट वगैरह नहीं होता था, और हम लोग क्या करते थे, स्प्राउट बनाते थे, बेचने वाले को देते थे कि भाई तुम खुद बेचो, और हम खुद खरीद के खाते थे वहाँ खड़े होकर के, ताकि और लोग भी उसका वो स्प्राउट खाएं। तो इस तरह से स्प्राउट का प्रचार हुआ, और आज देखो हर जगह पर स्प्राउट का प्रचार है। माँ का दूध सभी दूध से अच्छा है, इसका प्रचार हम लोग उस जमाने में करते थे। आज लोगों में अवेयरनेस है, लोग मानते हैं कि हाँ, माँ का दूध और जो भी दूध है उससे अच्छा है। आपको याद हो 60s में, 70s में लेडीज, औरतों ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी कि हमारा फिगर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग इसका प्रोपगेशन किया करते थे, नहीं नहीं, माँ का दूध सबसे अच्छा दूध है, तुम टीन के डिब्बों से दूध मत पिलाओ, बाहर से दूध मत पिलाओ, अपना दूध पिलाओ, और फिगर ठीक रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। गड़बड़ होगा तो हम मैनेज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या उस जमाने में थी। तो एक्सरसाइज, अब आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ओबेसिटी की। ओबेसिटी क्यों? क्योंकि खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन दिन भर बैठे रहते हैं, सुबह से शाम तक शरीर हिलता ही नहीं, कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। तो ये सीडेंट्री हैबिट के लिए अब क्या है? तो इसके लिए एक्सरसाइज एक सब्स्टिट्यूट है। हम लोग कहते हैं कि वॉकिंग एंड स्विमिंग, दीज आर बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर वॉकिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने लिए एक सेट योगा का बना लो और घर पर करो। और लोग अब करते हैं। इन चीज़ों का प्रचार बहुत जरूरी है। सीडेंट्री हैबिट के साथ स्लीप डिसऑर्डर्स जुड़े हुए हैं। अगर आपके एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे, दिन भर बैठे रहोगे, तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो कई तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है
कि आप वॉकिंग करो, स्ट्रेस को दूर भगाओ, योगा करो। अगर ये सब नहीं करोगे तो स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे। अभी स्लीप पर काफ़ी स्टडीज़ चल रही हैं। मैं जब यहाँ जाता था सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैं एमएस को कहा करता था कि आप एक स्लीप लैब बनाओ। वहाँ एक डॉक्टर जैन हुआ करते थे, और बाद में वहाँ से मेरा जाना बंद हुआ, तो बाद में स्लीप लैब वहाँ बना। पता नहीं क्या स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन जो भी मेरे पास अवेलेबल डाटा है वो ये बताता है कि अगर आप योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए कई चीज़ें करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसका स्लीप पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स आजकल बहुत हैं। कम से कम आदमी को 7 घंटे 7.5 घंटे सोना चाहिए। आजकल यंगस्टर्स सोते नहीं हैं। सोने के मामले में एक चीज़ और ध्यान देने की है कि आजकल लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, जबकि कुदरतन दिन में काम करो और रात को सो, ऐसा बनाया गया है। लेकिन अब जो भी हो, रात को 2-2 बजे तक मैं देखता हूँ बच्चे जागते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस थोड़ा पैदा करना चाहिए कि 2 आवर्स स्लीप बिफोर मिडनाइट इज बेटर देन 4 आवर्स स्लीप आफ्टर मिडनाइट। अगर आप 2 घंटे रात को 12 बजे से पहले सोते हैं, तो रात को 12 बजे के बाद 4 घंटे सोने से ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये स्लीप रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं जिनका प्रचार होना चाहिए, और स्लीप के बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनको योगा और नेचुरोपैथी ठीक कर सकता है। न्यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें योग और नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। इसको तो इन चीज़ों का अगर हम प्रचार करते हैं और समाज में प्रचार हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि देश में रोगियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और रोगियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, और उसका निशानी ये है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बन रहे हैं। इसको इस ढंग से भी देखा जाना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स सब बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन रोगी बढ़ते जाएं, ये इसका मामला ये उल्टा भी है। ये शो करता है कि देश में रोग बढ़ रहे हैं, देश में रोगी बढ़ रहे हैं, लोगों की जो सेहत है वो खराब हो रही है। ये अगर लोग ठीक हैं तो क्यों जाएंगे हॉस्पिटल में, क्यों उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो चीज़ों को सही सही हमें सोचना चाहिए। और पॉलिटिकली तो लोग जो प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग या डॉक्टर वासवा रेड्डी जैसे लोग जो सर्विस में हैं, जिनके हाथ में खुदा ने ऐसी चीज़ दे रखी है कि वो योगा नेचुरोपैथी का कुछ दिशा निर्धारित करें, तो उनको तो अपने ढंग से ही सोचना पड़ेगा। हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम इस देश में प्रिवेंशन को बहुत इफेक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं और कंट्री वाइड लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। और अगर विल है हमारे अंदर, हमारे सरकार के अंदर, हमारे मिनिस्ट्री के अंदर, तो हम इस देश के स्वास्थ्य की दिशा को बदल सकते हैं। और इस तरह के सोच रखने वाले लोग, कम से कम मुझे मालूम है कि आप लोग अभी हैं सर्विस में। मैं तो रिटायर हो गया बहुत पहले, और रास्ता भी बदल गया, कहाँ वहाँ नेचुरोपैथी योगा से हायर एजुकेशन में आ गया। अब मुझसे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई प्रचार क्या करें, क्या क्या चीज़ें प्रचार करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ 10 चीज़ों का प्रचार करो। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। है अभी भी 10 मिनट है, बात करें। तो मैं कहता हूँ 10 चीज़ों का प्रचार करो। पहला प्रचार तो ये करो कि भाई आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका जो लाइफ है वो बड़ा प्रेशियस है, लाइफ इज वेरी प्रेशियस, और इसको बर्बाद मत करो। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट इट। वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल,
and worth living in it, but it is true only for those who are healthy. ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और इसमें बहुत आनंददायक है, लेकिन यह उसी के लिए सत्य है जो स्वस्थ है। अस्वस्थ आदमी के लिए तो ये दुनिया बड़ी कुरूप लगेगी, बड़ी बदसूरत लगेगी। लोगों को इतना बदसूरत लगता है कि आत्महत्या कर लेते हैं। और जब जीवन आपका मूल्यवान है और ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, तो आप इस तरह से रहो कि आप एक उदाहरण बनो दूसरों के लिए। तो ये चीजें प्रचार करना पड़ेगा, और इसको जब प्रचार करते हैं तो लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है। और एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने को बदल सकते हो। यू कैन चेंज यूर सेल्फ। और ये बदलाव जो आपके अंदर किया जाए वो अच्छाई के लिए किया जाए। आप बदल सकते हो, आप अपने को जैसा बनाना चाहते हो बना सकते हो। रोगी हो तो स्वस्थ हो सकते हो। आपकी आदतें गड़बड़ हैं तो उस आदतों को सुधारा जा सकता है। और आप में जो भी सुधार हो वो कुछ इस तरह का हो कि वो लाभ के लिए हो, हानि के लिए ना हो, क्योंकि बदलाव हानि में भी होता है। दूसरा ये प्रचार करना बहुत जरूरी है कि you are endowed with immense potential and possibilities for growth and grace. आप में खुदा ने बहुत सारा ऐसा शक्ति दे करके पैदा किया हुआ है कि आप अपने को किसी ऊंचाई तक ले जा सकते हो। और ये आपको विश्वास होना चाहिए। हम लोगों का जो भी नेचुरोपैथी में या योग में लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने साधकों को, अपने मरीजों को इस बात का विश्वास दिलावें कि उसके शरीर में बहुत पोटेंशियल है। वैसे तो नेचुरोपैथी का मान्यता ही ये है कि हमारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। अगर वो खराब हो जाती है तो खुद को ठीक करने की क्षमता रखती है, बशर्ते कि हम उसको डिस्टर्ब न करें। तो आवर ह्यूमन बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग मशीन प्रोवाइडेड वी गिव इट ए चांस टू करेक्ट इटसेल्फ। ये बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी का। तो हमें जो भी लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो साधक हैं, सबको इस बात का विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि उनके शरीर में अनंत क्षमताएं हैं। वो जैसा चाहें वैसा अपने शरीर को, अपने मन को बना सकते हैं। और अपने को लिमिट नहीं करना चाहिए, अपने को विस्तार देना चाहिए। आपकी जिंदगी यहीं तक सीमित नहीं है। इसको आप जीवन को सीमित कर लोगे तो गड़बड़ है। फिर आपका मन नहीं करेगा कि आप अपने हेल्थ का प्रमोशन करें, कि ये करें कि वो करें। आपका जीवन असीमित है, असंख्य संभावनाएं हैं, इसलिए आप अपने को सीमित मत करो। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रचार करने का है कि आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट मत करो। आप आज जो कुछ भी हो अपने वजह से हो। पहलवान हो तो आपने पहलवानी की होगी तो आज पहलवान हो। अगर रोगी हो तो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा कि स्वस्थ थे और रोगी हो गए। आज जो कुछ भी आप हो उसके लिए पहली जिम्मेदारी आपकी ही है। और उसको ठीक करेगा कौन? ठीक भी खुद ही को करना है। ये हम लोगों का मौलिक सिद्धांत है। आप अपने वजह से ही, अपने गड़बड़ियों की वजह से गड़बड़ हुए हो, बीमार हुए हो, रोगी हुए हो, कमजोर हुए हो। आप उसको ठीक करो, स्वस्थ हो जाओ, बलवान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ। और चौथा चीज जो मैं चाहता हूं कि प्रचार हो
वो ये है कि शरीर में किसी भी तरह की कमी ना हो, इसलिए अपने आहार की शुद्धि करो। हम लोग नेचुरोपैथी में केवल 2 चीज़ें बताते हैं। एक तो ये बताते हैं कि शरीर स्वचालित मशीन है, निरोग को ठीक कर सकती है, जीवनी शक्ति है। दूसरा ये बताते हैं कि रोग इसलिए होता है कि हमारे शरीर में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो गया है। मैं कहता हूँ एक तीसरी चीज बताना बहुत जरूरी है कि शरीर में जिन चीजों की आवश्यकता है उनको पूर्ति करना बहुत जरूरी है। अगर पूर्ति नहीं करोगे तो डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाएंगी। जितने भी मिनरल्स और विटामिन हैं इनकी पूर्ति बहुत जरूरी है और इसको आपको पूर्ति करते रहना चाहिए। और इसलिए अपने भोजन को ठीक रखो, ये बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो चौथी चीज ये सिखाना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को नेग्लेक्ट मत करो। तुम क्या क्या चीजें नेग्लेक्ट करती हैं? एक तो समय से खाना नहीं खाते और सही खाना नहीं खाते। मैं कहता हूं कि आप सही खाना खाओ और समय से खाओ। ठीक ठीक हम सोते नहीं हैं। मैं कहता हूं अपनी निद्रा पूरी किया करो। 7 घंटे, 7.5 घंटे, 7 से 8 घंटे के बीच की जो नींद है वो जरूर लिया करो। अगर ठीक ठीक खाते हो, ठीक ठीक सोते हो और ठीक ठीक सोचते हो तो संभावना बड़ा कम है कि आप बीमार पड़ोगे। अगर ये 3 चीजें नहीं करते हो तो निश्चित रूप से आप बीमार रहोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें मलमूत्र वगैरह त्याग की जब भी आवश्यकता हो, तो इच्छा हो, प्रवृत्ति हो, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उसको रोकने की प्रवृत्ति रखते हैं, उससे उनको कई तरह का गड़बड़ होता है। और बहुत जरूरी ये है कि आप अपने काम में, व्यायाम में और आराम में एक संतुलन पैदा करो। अगर काम में और आराम में, एक्टिविटी और रेस्ट में संतुलन पैदा करते हो तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा। और सेक्स अब्यूज मत करो। आजकल बहुत तरह की मैं देखता हूँ गोलियों का एडवर्टाइजमेंट इतना भयंकर होता है टीवी पर कि सारे लोग इन दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनसे उनके शरीर को और उनके सेक्स लाइफ को भी लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए। तो नेचुरोपैथी का जो अप्रोच है होलिस्टिक, ये मैं बता चुका हूँ, इस पर जरूर आपका ध्यान जाना चाहिए। और प्रकृति के जितने भी नियम हैं उनका वायलेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करोगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी खराब होगी। आपके शरीर में जो भी वाइटल पावर्स हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे, आपकी वाइटलिटी रिड्यूस होती जाएगी। वाइटलिटी का रिडक्शन ही इम्यूनिटी में कमी कही जाती है। और जो भी अक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीजेस हैं उनका ठीक ठीक इलाज कर लेना चाहिए। नेचुरोपैथी में आप जानते हैं उपवास एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार है। कोई भी एक्यूट कंडीशन पैदा होते ही आप अगर उपवास कर लेते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि आपका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया है। तो ये जो उपवास है इसके बारे में भी सही सही प्रचार बहुत जरूरी है और वो एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का हथियार है। अगर आप अक्यूट कंडीशंस को सही सही मैनेज नहीं करेंगे तो ये क्रॉनिक कंडीशन में
ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो फिर आपके लॉन्ग टर्म परेशानियों का कारण बन जाएगा। तो 3 चीज़ें मैंने बताया आपको कि शरीर में विजातीय पदार्थों का संग्रह हो, उसको साफ करना चाहिए। शरीर अगर विजातीय पदार्थों से घिरा हुआ है, अंदर का वातावरण खराब हो चुका है, तो जब तक विजातीय पदार्थों को आप साफ नहीं करेंगे, ठीक नहीं होंगे। एलिमिनेशन ऑफ द मॉर्बिड मैटर फ्रॉम द सिस्टम इज क्योर। आप मॉर्बिड मैटर को एलिमिनेट कैसे करेंगे? एनिमा से लेकर के और कुंजल तक जितने भी तौर तरीके हैं, वो सब शरीर के अंदरूनी सफाई के हैं। शौच जो योग में है, वो शरीर के अंदरूनी और बाहरी सफाई की ही है। तो शरीर के विजातीय पदार्थों को आप दूर करो, शरीर को जो जो चाहिए उसकी पूर्ति करो, कुदरत के नियमों का उल्लंघन न करो, तो कोई भी रोग हो आप आज से अपने आप को ठीक कर लोगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और जब भी आप योग का प्रचार करें, तो नेचुरोपैथी का प्रचार करें, तो साथ में अष्टांग योग का भी प्रचार अवश्य किया करें। अगर योग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए मरीज को, आप समझ लीजिए कि 90% आप आश्वस्त हो जाइए कि अब वो सही राह पर चल पड़ा है और वो ठीक होने लगेगा। तो मुझे बताया गया था कि भाई 6 बजे तक ही बोलिए। अब पता नहीं 6 बज चुका है कि नहीं बज चुका है। तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना है। ने मुझे 7 बताने बजे के लिए तक है। नो हाँ, नो प्रॉब्लम। 7 बजे तक जी। हाँ, हाँ हाँ है अभी 7 हो गया है, 7 से ज्यादा। चलिए अब पूरा कर लीजिए सब। नो प्रॉब्लम पंडित साहब। यही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है और सौभाग्य से बड़े अच्छे लोग इस वक्त सब जगह पर हैं जो इस काम को कर सकते हैं। उसमें जन सहयोग की भी ज़रूरत है और जो लोग फील्ड में सरकार के बाहर अपनी संस्थाएं चला रहे हैं या व्यक्तिगत कुछ कर रहे हैं, उन सभी को भी इस अभियान में जुटना चाहिए। और योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक अभियान देशव्यापी चलना चाहिए और वो अभियान ये हो कि हमें पूरे देश में रोगियों की संख्या को कम कर देना है, पूरे देश के सभी लोगों के इम्यूनिटी को प्रमोट कर देना है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि पर्यावरण बदल रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे नए नए तरह के रोग आने वाले हैं। अभी कोविड आया है, अभी पता नहीं आगे क्या आएगा। तो बदलते हुए समय के साथ जो भी नई नई चीज़ें, नए नए रोग पैदा होंगे, उनसे लड़ने में केवल और केवल आपके शरीर की इम्यूनिटी ही काम आएगी। सबसे पहले आप किसी चीज़ की दवा खोजेंगे, 1-2 साल लगेगा, तब तक तो आपका पता नहीं क्या हो चुका होगा। इसलिए हर आदमी का दायित्व है कि वो अपनी इम्यूनिटी को ठीक करे और उसके लिए योग और नेचुरोपैथी से बढ़िया कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। और एक हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, जल्दबाजी में मत रहिए। हर चीज़ का अपना एक नियम है। आप अपने को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करिए और आप देखेंगे कि थोड़े दिन में आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म किन चीज़ों में करना है? ट्रांसफॉर्म आपको खाने में करना है कि आप जहाँ तक हो सके खाने को शुद्ध रूप में लो और कम विकृत कर करके खाना बनाओ। कई बार खाना ऐसा बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो खाना क्या है। जो चीज़ें नेचुरल फॉर्म में आप ले सकते हो उसको नेचुरल फॉर्म में लो। खाने को ठीक करो। और खाने के मामले में एक चीज़ और है कि आपका खाना ही आपकी दवा है।
योर फूड इज योर मेडिसिन। और अगर आपको आधे दिन फलों पर रखा जाए और आधे दिन बाकी खाने पर, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर कई तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होने लगा। मैं ज़्यादातर लोगों को ये कहता हूँ, तुम आधे दिन फलों पर रह जाओ, आधे दिन बाद अपना नॉर्मल खाना जो घर पर बना है उसको खाओ, लेकिन खाना खाने से पहले सलाद अवश्य खा लिया करो। और मैं देखता हूँ कि इसी एक छोटे से प्रेस्क्रिप्शन से उनमें काफ़ी बदलाव आने लगता है। पानी पीने के बारे में लोगों को आइडियाज़ नहीं है। डॉक्टर कैलॉग का नाम आप लोग जानते हैं, कैलॉग कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, वजह से। लेकिन कैलॉग ने न्यू डायटेटिक्स एक बहुत बड़ी किताब लिखी है और उसमें 2 चीज़ों पर उसने बहुत जोर दिया है। एक तो चबा कर खाने पर बहुत जोर दिया है कि आप मस्टिकेट खूब करो, च्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना चीज़ों को चबा करके खाओगे उतना वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा अनुकूल बनेगा और उतना आपके स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। अगर आप में क्रिमिनल टेंडेंसीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो आप, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा झगड़े करते हो, तो आप खाने को खूब चबा करके खाना सीख लो, या ऐसी चीज़ें थोड़े दिन खूब खाया करो जिनको काटना पड़े काफ़ी देर तक। जैसे आप चना खाओ या सूखी रोटी खाओ तो आपको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है। आप देखेंगे कि अगर आप चबा करके खाने की आदत डाल लें तो आपके स्वभाव में, आपके क्रिमिनल टेंडेंसीज में, आपके झगड़ालूपन में बहुत कमी आने लगती है। इस पर डॉक्टर पॉल का बहुत बहुत लंबा रिसर्च है। और इसी तरह से पानी पीने की आदतें। अब पानी पीने के बारे में, कितना पानी पीना चाहिए, तो मैं कहता हूँ भाई जितने किलो हो उतने उसको 20 से भाग दे लो। आमतौर पर इतना पानी पर्याप्त है ना। 60 किलो के हो तो 3 लीटर पानी पी सकते हो क्या। कोशिश करो कि पानी पिया करो। पानी पिए कैसे? सबसे अच्छा उपाय ये है पानी पीने का कि एक तो आप सो करके उठते हो उस वक्त जो भी पानी पीना चाहें पी लें। जापान का एक रिसर्च है कि 1 लीटर और 200 ml पानी अगर आप सो करके उठने पर पीते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, फलाना ढिमाका, कोई रोग नहीं रहेगा। मैं तो ये क्लेम नहीं करता, आदमी जितना पी सकता है उतना ही पीना चाहिए। किसी को किडनी डिजीज है और बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा। तो आप जितना पी सकते हो पियो, लेकिन सुबह सो करके उठते हो पानी पीने की आदत डाल लो। दूसरा, एक आदत ये डाल लो कि खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीने की आदतें डाल लो। ये आपको काफ़ी आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करेगी। हाफ एन आवर बिफोर एंड आफ्टर मील्स, ये पानी पीने की आदत जितना अच्छा है। मस्टिकेट करके खाओ, खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद पानी को पियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सलाद खाने के पहले खाओ, ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने में ज़्यादा मदद करता है। स्प्राउट को आप अनिवार्य रूप से अपने खाने में शामिल करो। कभी कभी नाश्ता आप फलों का करते हो, कभी स्प्राउट का भी नाश्ता कर सकते हो। अगर स्प्राउट सुबह नहीं खाया है, सलाद में 1 चम्मच 2 चम्मच आप मिक्स करके लो। आप देखेंगे कि आपके बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने लगी है। स्प्राउट, कोई जो बीज है वो स्प्राउट तभी बनता है जबकि उसमें जीवन को बनाए रखने के लिए जितने भी तत्वों की जरूरत है वो होती है। अगर एक भी तत्व की कमी होगी तो वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्प्राउट को एक जीवित आहार कहते हैं, इट इज ए लिविंग फूड। तो आप उसको जरूर अपने खाने में शामिल करो। मेथी भी स्प्राउट हो जाता है, मेथी स्प्राउट करके खाओ तो उससे आपको डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में या क्योर में, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान
और शरीर में दर्द वगैरह होता हो तो आप स्प्राउट में मेथी भी मिक्स करके खाओ, शरीर का दर्द वगैरह मिटने में बड़ा सहयोग मिलता है। लेकिन स्प्राउट के साथ दूध मत पियो। स्प्राउट खा करके दूध पियोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनाने लगेगी। तो ये तो थोड़ी सी बात मैंने खाने के बारे में बताई, और थोड़ी सी बात सोने के बारे में जो मैं कह रहा था कि आप सोना जरूर अपना टाइम से करो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सोने के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बिस्तर को केवल और केवल सोने के लिए उपयोग किया करो। हम लोगों की आदत है कि हम बिस्तर को खाने के लिए प्रयोग करने लगते हैं, बिस्तर को अपना दफ्तर बना लेते हैं, बिस्तर पर पूरा दफ्तर अपना खोल करके बैठ जाते हैं, बिस्तर पर बैठ करके हम टीवी देखने लगते हैं। ये सब धंधा पानी आप बंद कर दो। जब तक आपके नींद का और आपके बिस्तर का एसोसिएशन ठीक रहेगा, तब तक आप जैसे ही जाओगे बिस्तर पर आपको नींद आ जाएगी। और जैसे ही आपने ये एसोसिएशन कई चीज़ों से बना लिया बिस्तर का, तो आप बिस्तर पर जाओगे, लेटे रहोगे, नींद नहीं आएगी। कभी आप टीवी देखोगे, कभी उस पर बैठ के खाना खाओगे। ये सब आदतें खत्म करो। लेट योर बेड बी एसोसिएटेड ओनली फॉर स्लीप पर्पसेस। तो ये जो एसोसिएशन है, तो इससे आपको नींद अच्छी आने लगेगी। और घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं जिनको नींद की समस्या है, हम लोगों के कल्चर में एक चीज बहुत अच्छी थी कि यंगस्टर्स बूढ़े लोगों के पैर दबाया करते थे। तो बूढ़े लोगों का पैर दबाने में क्या फायदा है? 2-3 फायदे हैं। पहली फायदा तो ये है कि वो बूढ़े को बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। क्यों नींद आ जाएगी? क्योंकि पैर में वेज़ोडाइलेटेशन, खून की नलियों में खून ज़्यादा आने लगता है, तो इस वजह से हेड में कंजेशन दूर हो जाता है। वो वही काम करता है जो हॉट फुटबाथ से काम होता है। तो एक तो उसको नींद अच्छा आएगा, दूसरे आपका अगर कोई लड़ाई झगड़ा है आपके बुजुर्गों से तो वो खत्म हो जाएगा। आप जिस भी बुजुर्ग का पैर दबाओगे वो आपको आशीर्वाद ही देगा, बद्दुआ नहीं देगा। और आपके साथ कोई गड़बड़ी होगी तो वो दूर हो जाएगी। तीसरी सबसे फायदा क्या होता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें नियम बन जाती हैं तो आप डरोगे कि कोई गड़बड़ करके जाएंगे, रात को पैर वैर दबाएंगे तो कहीं उनको पता चल गया, नाराज होंगे। इसलिए आप शराब नहीं पियोगे, आप ड्रग अब्यूज़ नहीं करोगे, आप बीड़ी सिगरेट से बचोगे, क्योंकि रात को पैर दबाना है। तो ये कुछ फायदे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो बुजुर्गों के पैर दबाने का बहुत फायदा है। आप एक चीज़ याद रखो कि अगर पैर में खून का दौरान बढ़ेगा तो सर में खून का दौरान 1 बूंद 2 बूंद भी कम होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ टहलने की आदत, पैर दबाने की आदत, हॉट फुटबाथ की आदत, ये सब डाले रखो ताकि आपको नींद अच्छी आवे। और सोचने के मामले में आप यम नियमों का जरूर पालन किया करो। योग के प्रथम और द्वितीय सीढ़ी है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 10 चीजों को जीवन में उतार लो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप मानसिक रोगी नहीं होगे, आप कभी आत्महत्या नहीं करोगे। आपको शायद मालूम हो कि 8 लाख से ज्यादा लोग हर साल आत्महत्या करते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। इतने आदमी कभी लड़ाई में भी नहीं मरते। तो ये आत्महत्या क्या चीज है, इस पर अलग से किसी दिन आप लोगों से बात करूंगा। तो खाना, सोना और सोचना, सोचना आपको यम नियमों के अनुपालन से ही ठीक होगा। और ईश्वर पर आस्था रखो, प्रेयर को भी अपना एक आदत बना लो। प्रेयर से और कोई फायदा हो नहीं फायदा हो, लेकिन स्ट्रेस लेवल जरूर दूर होता है।
उसमें कम से कम आप अपनी बहुत सारी परेशानियां खुदा पर डाल देते हो, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस पर डाल देते हो। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में प्रेयर का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस लेवल को दूर करने में प्रेयर का बहुत बड़ा रोल है। इस पर कई स्टडीज हैं। समय कम है, मैं कभी फिर आप लोगों के साथ इस विषय पर, यम नियमों पर बात करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर वासवा रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी यम नियमों पर चर्चा हो तो मुझे ज़रूर याद करें। और आपने हमारी बातों को सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने को बदलिए, अच्छाई के लिए बदलिए, जल्दबाजी मत करिए। एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल नए आदमी बन जाएंगे, नए, स्वस्थ, प्रफुल्ल और खूबसूरत। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत किसी बहुत को कोई धन्यवाद। प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा जो कमेंट, जी एक दो आपने किया है कि मैं जस्ट 3 पॉइंट पर मुझे लगा कि जस्ट समाप्त करो। आपने हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं। इस वेबिनार जो चालू हुआ अक्टूबर पिछले साल इम्यूनिटी के माध्यम बढ़ाने के लिए, आपने वही किया है कि वन इज आहार, और दूसरा है कि नींद के बारे में आपने किया, तीसरा है सोच के बारे में, स्वभाव और सोच के बारे में आपने बात की। ये तीनों ठीक है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहते हैं। इसके जरिए हमने एक नहीं हजारों मात्रा में प्रैक्टिसेस और मॉडल्स तैयार किया गया। आपने बहुत सारी चीजें यहाँ हमारा लिसनर्स है उनको आपने बहुत सरल ढंग से बताया। आहार के बारे में, नींद के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताया। सो मुझे 40 साल का पहले यादें आपने ताजा कर दी, क्योंकि हम कर्नाटक में एक हुबली में बेंगेरी, वहाँ भी महात्मा जी आए थे। वहाँ एक बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक थे रेड्डी जी, जकरेड्डी नाम से आप जानते होंगे। जी जी वो जी। कहते थे। सो उनके भाषण हम सुनते थे बचपन में भी सुनते थे सारे, वही चीजें बताते। दूसरा है कि आपने 10 पॉइंट जो है बहुत अच्छी ढंग से समझाया, जो आपने समाप्त किया है कि वही सारांश है। तीसरा है कि यहाँ ये अच्छा, ये वेदिकी में बताना नहीं है कि नहीं बताना, लेकिन मैं इस माध्यम से आपको सभी को बताना चाहता हूँ, योग नेचुरोपैथी दोनों अलग नहीं हो सकते, कोई डरा नहीं उसमें। कोई हमने कभी, मैंने बोला है नहीं जिंदगी में लेकिन समस्या ये है, योग सिर्फ हम चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एजुकेशन में है, आज स्पिरिचुअलिटी में है, दर्शन में है। आप पूरा भारतीय विश्वविद्यालय में जाइए तो वो ह्यूमैनिटीज में है, फिजिकल एजुकेशन में है, साइंस में है, सोशल साइंस में है, मेडिसिन में है। हर जगह में योग का ये होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही है, विश्व भर में यही है। सिर्फ योग को हमने एक चिकित्सा पद्धति में ही कन्फाइन ना करें, उनका जो विस्तार है उनको वो बढ़ने दें। आज ये एक विश्व मान्यता इसलिए बनना है कि उनको पाबंदी नहीं किया हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, सिखाने के लिए उनको पैसा नहीं लिया। अब तो वो भी मार्केटिंग चीजें बन गई है। सो हमने, हमारा गुरुजी और मैं आज भी तनख्वाह के अलावा किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं सिखाने के लिए। ये हमारा गुरुजी का पहले से ही नियम था, आज भी हम फॉलो करते हैं। कोई भी वो शिक्षक पहले योग को अभी हर स्कूलों में, हमारा स्कूल में हम बचपन में प्रार्थना और योग, सूर्य नमस्कार के बिना, प्रार्थना के बिना हमारा
स्कूल में क्लासेस प्रारंभ ही नहीं होते थे। सवेरे 7:30 बजे उन जमाने में, बाद में 10 बजे वो सारे हो गए। 7:30 बजे जाता ही 7:30 बजे से पहले हम आकर स्वच्छता करते थे पूरा प्लेग्राउंड वगैरह। मेरा 60s का मैं बता रहा हूँ। स्वच्छता पहले करना है। टीचर्स भी आते थे, हम भी आते थे। 7 to 7:30, 7:30 पूरा होते हाथ मुंह धोकर पहले प्रेयर करना, 10 मिनट बाद में सूर्य नमस्कार। 8 बजे के बाद हमारा क्लासेस चालू होती थी। ये हमारा रूटीन। बहुत सारे स्कूलों में ये पहले था। जो आप नेचुरोपैथी का जो पद्धतियाँ जो भी आज बता रहे हैं, हमें स्कूलों में ये शिक्षक लोगों ने इनडायरेक्ट वे में सारे हमें करवाते थे, पढ़ाते नहीं थे। वो खुद जीते थे। हमें जीतने में 4:30 बजे से पहले कभी हम उठे नहीं है स्कूल के दिन। टीचर्स आकर हमें जगाते थे 4 बजे, 4:30 बजे। सो 9:30 बजे के बाद कभी हमने जागा नहीं। ये सारे चीजें हमें पहले सिखाते नहीं थे, करवाते थे। तो इसलिए वो चीजें एक है। दूसरा ये मैं ये कहूंगा पांडे साहब, आप भी सहमत होंगे, आजकल स्पेशलाइजेशन की दुनिया है। प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में इतने सारे विषय है, उन पर हमने माइक्रो लेवल पर, सपोज आप कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, उनको रिलेट करते हैं, एक स्पेशलाइजेशन बन गए। आप डेंटिस्ट बन गए, डेंटिस्ट में हर एक कितना स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट में आ गए। हम इस पर कहीं सोचना ही बंद कर दिया हमने। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज द फ्यूचर, बट इंटीग्रेटिव मेडिसिन में आपको जो डॉक्टर्स मिल रहा है वो डिसीज मैनेजमेंट के लिए इतना क्षमता है हमारे पास। ये बहुत बड़ा समस्या होगी आने वाले दिन में। इसको हमने एड्रेस नहीं किया तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमें हवा में तीर चला रहे हैं हम सारे। जब अब डिसीज की बात आती है, जैसे आपने मॉडर्न मेडिसिन में जो कहीं में स्पेसिफाइड इतना ट्रायल करके कराते हैं, वो डिसीज की बात आते हैं तो वो भी क्षमता हमारे सिस्टम में है, मैं मॉडल्स में, लेकिन वो करने में, क्योंकि ये ऑल एक्सपीरियंशियल है और इंडिविजुअल बेस्ड है, होलिस्टिक है। हम ऐसे बात किया तो हमारा सिस्टम नहीं बढ़ेगा। हम स्पेशलाइज आसन में स्पेशलाइजेशन, प्राणायाम में स्पेशलाइजेशन, उनका थर्मोडायनेमिक्स से, मैं साइंस के विद्यार्थी है तो मैं इतना मैं जान सकता हूँ प्राणायाम का थर्मोडायनेमिक्स से क्या ताल्लुक है, आसन का मैकेनिक्स में क्या ताल्लुक है। इतने सारे चीजें हमने भूल जा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फंसे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाइड्रोथेरेपी में देख लीजिए, फास्टिंग थेरेपी में देख लीजिए, हम ब्लाइंडली सारे वो कैलोरी बेस्ड को फॉलो करने चालू कर दिया नेचुरोपैथी। होलसम और होलिस्टिक के बारे में बात ही नहीं करते हम लोग, रीजनल सीजनल फूड का बात ही नहीं करते। हम भी वही बन गए तो हमारा नेचुरोपैथी वेस्टर्नाइज हो गया। योग भी हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करते, जिम में बात करते हैं, एरोबिक्स के बात करते, योग खत्म हो गया। माइंड बॉडी मेडिसिन हम कहते हैं, उसको है ही नहीं। ये सारे चीजें आज ने तो मैंने इसलिए कहा कि दिस इज नॉट प्रॉपर, बट आपने बहुत सारे ऐसे मूलभूत विषयों को यहाँ जानकारी लिया। हर एक विषय पर भी हम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हैं। ये हमारा सिस्टम के, मैंने इसलिए बहुत गैर से हम अभी हमने 6 MSc स्पेशलाइजेशन तैयार किया। योग में 6 स्पेशलाइजेशन तैयार करो, प्राकृतिक चिकित्सा में तैयार करो। हमें ऐसे विस्तार ढंग से सोचना चाहिए। लेकिन जो मिलना है योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जब विदाउट योग प्राकृतिक चिकित्सा का और आयुर्वेद में भी वो लोग मानने लगे कि उनका पद्धति पूर्ण होता ही नहीं। जो भी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा है और योग में भी हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा को यूज करते हैं। हमेशा आयुर्वेद का नाड़ी तंत्र हो, वात पित्त कफ का हो, सारे मैंने कृष्णा भट्ट को देखा हूँ। दे आर फर्स्ट आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को पूरी ढंग से पढ़ने के बाद ये चिकित्सा करते हैं। लेकिन योग का अलग अलग आयाम है, दर्शन है, आध्यात्मिकता है और एजुकेशन है, वैल्यूज है, मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, हजारों लाखों में उसमें है। सो वो सारे चीजें हमें विस्तार रूप से दिया तो ये पद्धतियां हैं, हमारा पद्धतियां विश्व मान्यता तब होगी हमें उस पर परिपक्वता और स्पेशलाइज्ड
पर्सन हम पैदा करेंगे। सो हाइड्रोथेरेपी में इतना उत्कृष्ट रिसर्च हो, मेडिटेशन में इतना उत्कृष्ट पद्धतियाँ हो, प्राणायाम में कितनी मात्रा में रेशो करना चाहिए, कौन-सा बीमारी में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारे सोचा है। मैं जानता हूँ आप भी विशेषज्ञ हैं, तो आप भी मानते हैं, ये हमारा ज़रूरी है, दिस इज़ अवर फ्यूचर। इसलिए मैंने कभी अ, सिस्टम को अलग करो, ये करो, हम सोचते ही नहीं। लेकिन हमें इनको आड़ और विस्तार, उनका व्याप्ति है, उनको कम नहीं करना है, उनको बढ़ाना है। कम किया तो हम विलन बन जाते हैं। तो इसलिए हम उनको विस्तार को, सो एक्सपांशन के बारे में सोचिए, कन्फाइन मत करें। कुछ ही पात्रा में कन के इसी में हमने कही तो अदरवाइज योग आज विश्व मान्यता क्यों प्राप्त करते? अनेक देशों में अपने-अपने ढंग से हमारा गुरु ने, महर्षियों ने जाकर उनका रिलीजन, इनके साथ-साथ जाकर हमने मॉडिफाई किया। अब देख लीजिए ओम का बहुत प्रॉब्लम आ गए तो हमने उनको ओम बदल कर मकार में कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। बहुत सारी चीज़ें करते आए हैं। ये थोड़ा-सा विचार है, हम कहीं इस पर भी, क्योंकि आप ऐसे विशेषज्ञ हैं, आप लोग इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हमारे सिस्टम का फ्यूचर है और बाहर के लोग उसको करेंगे। अभी चीना ने बहुत सारे योग का हमारे विशेषज्ञों लेकर वो लोग स्पेशलाइज़ कोर्स चालू कर। हमारे पीछे भी पड़े, आप भी आ जाओ। हाँ, यूरोप में इतना अभी पैंडेमिक की वजह से 2 साल सारे विश्व में हुआ है, अदरवाइज़ बहुत सारे बदलाव नेचुरोपैथी में, योग में आने वाला है। सो मैं जो श्रोता हैं, उनको निवेदन करता हूँ, इसका एक-एक पहलू में भी इतना महत्वपूर्ण विषय है। हम स्पेशलाइज़्ड हो सकते हैं, डाइट में हो सकता है, हाइड्रोथेरेपी में हो सकता है और मिट्टी चिकित्सा में भी हम विशेषज्ञ हो सकता है। मैं अभी स्पेशलाइज़्ड मेडिटेशन मास्टर डिग्री चालू किया। प्राणायाम का ही भी हम आसन का मास्टर डिग्री स्टार्ट कर दी, मास्टर डिग्री इन योगासन में, वो चालू करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से लाएँगे? हमारा शास्त्र से, मॉडर्न साइंस से इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ द फ्यूचर। सिर्फ योग नेचुरोपैथी का नहीं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन इज़ द फ्यूचर एंड योगा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। नेचुरोपैथी is also very important. Both of should go hand in hand, no doubt about it. ये मेरा विचार था, आपके सामने शेयर किया। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। आज मैं असल में बोल रहा था, पॉपुलर लेक्चर है ये, एकेडमिक लेक्चर नहीं। या तो इसलिए मैं वो रिसर्च वाले पहलू पर बात नहीं किया जाता। ये रिसर्च और अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं नेचुरोपैथी का 10 वॉल्यूम्स में एनसाइक्लोपीडिया कंपाइल कर रहा हूँ, उसी में आजकल लगा रहता हूँ, देखें कितना दिन लगता है। ये सब बहुत बड़े विषय हैं और आपके इस कथन को मैं समर्थन करता हूँ कि आने वाला दिन ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन का ही है और सारी दुनिया में अभी इस पर चिंतन चल रहा है। और ये कोई नया चिंतन नहीं है, ये मैं 1980 में आया CCRYN में। तो डॉक्टर उडुप्पा साहब होते थे, आपको याद हो, BHU में, और उन्होंने ये शुरू किया कि भाई इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए, इस पर कुछ काम होना चाहिए। तो हम लोग उनके सिपाही थे उस जमाने में। डॉक्टर एक दुबे हुआ करते थे, अब पता नहीं कहाँ हैं। तो अलग से उन्होंने एक सोसाइटी भी बनाया था। तो खैर बहुत अच्छा लगा और ये जान करके बड़ा अच्छा हुआ कि भाई आप योगा में 6 विषयों में करवा रहे हैं स्पेशलाइजेशन, MSc, PhD भी करवाइए और मेरे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए। मैं 5 साल वाइस चांसलर था अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ समय नहीं मिला। एक तो यूनिवर्सिटी नई थी और उस नया यूनिवर्सिटी को सेटअप करना कितना मुश्किल काम होता है, आप जानते हैं। तो सेटअप करते करते मैंने योग नेचुरोपैथी का भी एक डिपार्टमेंट चालू किया, LLB का चालू किया, इंजीनियरिंग का चालू किया। तो वहाँ पर
अभी BNYS हो रहा है, वहाँ अभी नए वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई आप किसी दिन दिल्ली आओ, और दिल्ली आने के बाद यहाँ MDNIY जाओ, आयुष मंत्रालय जाओ, वहाँ पर हमारे एडवाइज़र हैं MDNIY के, डायरेक्टर हैं डॉक्टर वासवा रेड्डी साहब, उनसे मिलो तो आपको नए नए क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए वो ज्ञान देंगे। इसका प्रचार बहुत जरूरी है, प्रचार बहुत जरूरी है। और योग तो इतना बड़ा विषय है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। स्पेस ट्रैवल से लेकर के और ओशनोग्राफी तक में ये योग का सब मामला है। तो बड़ा अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रहते, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है ना, यू स्टार्टेड योर करियर इन ए यूनिवर्सिटी, तो वो आप यस उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप कुछ भी बन जाए, वो जो यूनिवर्सिटी है आपके खोपड़ी में वो बसी रहती है, और इसीलिए आप इतना काम भी कर पा रहे हैं। ये जो नए नए विषय, नए नए स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, MBA हम लोगों ने सब चालू किया था जब, तो केवल MBA होता था। हम लोगों ने उसमें 30 स्पेशलाइजेशन किए, MBA फाइनेंस, MBA HR, MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दिस एंड दैट, 30 ब्रांचेस में। वैसे ही आपका है, आप योगा के तमाम स्पेशलाइजेशन, अभी नेचुरोपैथी के भी तमाम ने स्पेशलाइजेशन करते हैं। योगा सेंटर में योगा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का भी कोर्स बना दिया हमने, हाउ टू मैनेज योगा सेंटर्स इंस्टीट्यूशन, ये भी बहुत मास्टर अच्छा। मैनेजमेंट में लाया, उसको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक मास्टर डिग्री करा दिया। क्योंकि जब तक वो स्पेशलाइज नहीं होते, आजकल स्ट्रेस के बारे में जनरल बात करते हैं, वही वाला बार बार बात करते हैं, तो कॉर्टिजोल वगैरह है, लेकिन स्ट्रेस का अनेक पहलू है, उनको पूरा वही स्पेशलाइजेशन करें। जी जी जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, योगिक हॉस्पिटल, योगा योगा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, योगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, योग आरोग्य धाम कहते हैं हम लोग उसको। सारे ऐसे बहुत सारी चीजें आजकल इंटेग्रे नया एजुकेशन पॉलिसी में, NEP में बहुत सारे पहलू है। पांडे साहब, जो हमने रजिस्टेंस वगैरह देख रहे हैं ना, ये लोग, हम कुछ लोग है ना, इसका ओनरशिप चाहते हैं। आजकल गवर्नमेंट का नेशनल नया एजुकेशन पॉलिसी जो है, ओनरशिप खत्म कर दिया, यूनिवर्सलाइज कर दिया एजुकेशन को। सो इतना आपको एंट्री एग्जिट है, कहीं जी भी आप सोच नहीं सकते। इसलिए जो जो आपको आजकल स्किल का बात करते हैं हम लोग, आजकल हेल्थ की बात करते हैं, आज की हम यूनिवर्स और स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में आजकल एम्यूनिशंस वगैरह सारे होंगे, स्पेस साइंस इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ेगी, आप उम्मीद नहीं कर सकते। जी जी जी। ये सारे फ्यूचर्स है, हमने ये पुराना वाला सोचने लगेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए नहीं, ये हमने बहुत इस ढंग से जरूरी है कि सोचने आने का। वाले समय को सोच करके कोर्सेज डेवलप किए जाएं। यस आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं देखता हूँ 5-5 साल बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और जब पढ़ के निकलते हैं तो जो भी पढ़ते हैं वो आउटडेटेड हो चुका होता है। ये बहुत जरूरी है कि करिकुलम ऐसा बने जो आने वाले 10-20 साल को सोच करके बनाया जाए, कि आने वाले 10-20 साल में दुनिया नहीं, डेप्थ कहाँ हमें, होगी, तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। योग नेचुरोपैथी में समस्या ये है, हम डेप्थ नॉलेज कोई भी नहीं देते। हाँ, अभी 3 साल में 5 साल में हम सारे चीजें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, हाँ, योगा टेक्स्ट, फिलोसफी, पैथोलॉजी, हाँ, बाद में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सारे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाएंगे, क्या विशेषज्ञ बने। मैं MSc फिजिक्स किया हूँ, आज भी मैग्नेटोथेरेपी, और मेरा स्पेशलाइजेशन था फाइनल ईयर में जी जी। मैग्नेटिज्म वगैरह सारे। इतना करने के बावजूद भी मुझे इतना ज्ञान नहीं मिला। बहुत अच्छे अच्छे लेबोरेटरी में हमने अध्ययन किया है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन रहा, जी जी। इसके बावजूद भी हमारा नॉलेज बहुत कम था। लेकिन हमने मैग्नेटोथेरेपी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे गहराई से स्पेशलाइजेशन निकलेगा, तभी वो बढ़ेगा। अदरवाइज ये बेसिक नॉलेज होंगे, दैट इज कॉल्ड, हमने नर्सिंग में देते हैं, ऐसे देने से आजकल नहीं चलेगा। ये इस पर हमें बहुत सारे लोगों को बताया है, स्पेशलाइज करो, विज्ञान को जोड़ो उनसे। हमारा पूर्व विज्ञान है, आज आधुनिक विज्ञान दोनों मिल गया, एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस, तभी हम इसको रख पाएंगे। अदरवाइज कोई और नया सिस्टम, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए पंडित साहब, लास्ट में लोगों को चाहिए सॉल्यूशन,
कोई इस- सिस्टम आपको बहुत कम समय में, कम पैसा में, कम मेहनत से आपको जो देता है, गोली खा लो आप 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। सो इसलिए गोली के पीछे दौड़ रहा है। और लेकिन गोली क्या नुकसान कर रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, अवेयरनेस बढ़ चुका है। What is the negative impact of medicines or antibiotics or whatever it may be. Sorry, now the people are now aware about lifestyle वगैरह, उसके लिए काम करें। और थैंक यू। वंदना जी, कुछ क्वेश्चन है तो लीजिए, ज्यादा टाइम हो गया। हम वार्तालाप चालू कर दिया, पांडे साहब से घंटों भर चलता रहता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सर ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रशंसापूर्ण वक्तव्य हमारे कमेंट बॉक्स में है। एक प्रश्न मैं लेना चाहूंगी सर। एक किसी ने पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव आई साइट जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से किस तरीके से बेहतर की जा सकती है? आईसाइट पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और बड़ा सिंपल सा कुछ चीज़ें हैं जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आईसाइट की बात करते हैं तो आईसाइट कई चीज़ों पर डिपेंड होती है। जो सबसे ज़्यादा मामला होता है उस आई बॉल के एडजस्टमेंट का होता है और इसलिए उसके लिए हम लोगों ने एक्सरसाइजेस इन्वेंट कर रखे हैं। तो अगर बच्चे को एक तो जलनेती कराया जाए योगा का, और दूसरा ये कि ग्रीन कलर जो है, हरा रंग, इसका आय के साथ संबंध होता है। तो हम लोग ग्रीन सोलर वाटर पिलवाते हैं। ग्रीन सोलर वाटर क्या है? पानी को किसी कांच के बोतल में धूप में रख दो तो 8 घंटे बाद वो पानी में हरे रंग का असर आ जाता है, दवा का काम करने लगता है। तो उस ग्रीन सोलर वाटर को हाफ कप एम्प्टी स्टोमक पियो और उसी ग्रीन सोलर वाटर को आई कप में डाल करके आंखों को उसमें खोलो, बंद करो। ये करने के बाद आप आई एक्सरसाइजेस करो, अप एंड डाउन, ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, 5-5 राउंड करो। फिर लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। फिर आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 राउंड चलाओ और उसके बाद उसको आंखों को रेस्ट दो, आंख बंद कर करके खोलो, बंद करो। ये बड़े सिंपल सी चीज है, इसको आप करने लगिए तो आप देखेंगे कि आपके आई साइट में इम्प्रूवमेंट आने लगी है। और गाजर का मौसम हो तो गाजर का जूस खूब पिया करो, आंवले का जूस खूब पिया करो, तो ये आई साइट ठीक हो जाती है। एक किताब मिलती है बड़ी अच्छी, बेटर आई साइट विदाउट ग्लासेस, और उसमें जो भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं वो बड़ी उपयोगी एक्सरसाइजेस हैं और वही वर्ल्ड ओवर चलता है। हम लोग भी वो कराते हैं, थोड़ा बहुत आदमी के अनिवार्यता के अनुसार बदल लेते हैं। तो इसको आप करिए और आप देखेंगे कि 28 दिन बाद आपकी आंखों में निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव दिखाई पड़ेगा। 28 डेज तो चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्राकृतिक चिकित्सा के भौतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक पक्षों पर इतने सरल शब्दों में और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपको सुनने का मौका हमें मिला। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका पुनः कोटिशः धन्यवाद सर। साथ ही मैं संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर ईश्वर वी बसवा रेड्डी के सर के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनकी प्रेरणा और ऊर्जा से हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर पाते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और यू। संस्थान के जी सर, थैंक यू। संचार एवं प्रलेखन अधिकारी मोहम्मद तैयब आलम सर और हमारी तकनीकी टीम को उनके तकनीकी सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. तथा हमारे सभी सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम का समापन हम शांति पाठ के साथ करेंगे। आप एक चीज और, मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि अभी जी सर। मेरा परिचय जब दे रहे थे तैयब आलम साहब, तो मुझे बता रहे थे कि ये प्रो वाइस चांसलर हैं। मैं प्रो नहीं, वाइस चांसलर नहीं हूँ, चांसलर। प्रो चांसलर हूँ।
तो प्रो चांसलर अपने रिकॉर्ड में जरा ठीक कर लीजिएगा, ठीक नहीं ठीक तो चिट्ठी उट्ठी सब गड़बड़ चली जाएगी। नहीं मेरे नहीं नाम के और पंद्रह लोग हैं। प्रो चांसलर और चांसलर में प्रो चांसलर में वाइस चांसलर Different. फर्क है वो 3 सीढ़ी का अंतर है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक। बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। ओके ओके सर। धन्यवाद पंडित साहब धन्यवाद Thank you, sir. थैंक यू नमस्कार